Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are well fine. Stay home, stay safe. My dear students, as you know, we are discussing second chapter, atomic structure, and we are discussing Bohr atomic model and its application. Today we will start the derivation of radius of an orbit of an atom. Bohr derived expression of the calculation of radius of nth orbit of an atom of hydrogen or ion like helium, lithium, etc. Let us consider an atom having an electron moving around the nucleus having charge Z, where Z is the atomic number, let m is the mass, r is the radius, and v is the velocity of the electron that is revolving around the nucleus. According to Coulomb's law, electrostatic force of attraction or repulsion is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of the distance between two charges. When an electron is revolving around the nucleus, it faces two types of force, centripetal force and centrifugal force. Centripetal force is directed the electron to keep in the circular motion, and its attraction will be towards nucleus, that is Z square by 4 pi epsilon naught r square. Centrifugal force mv square by r that oppose the centripetal force, that oppose the electron to falling into the nucleus, that keeps an electron in the balance. सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है, वो अगेंस्ट करती है सेंट्रीपिटल फोर्स की. तो जब दो फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं, जब दोनों फोर्सेस अट्रैक्शन और रिपल्जन दोनों जब इक्वल हो जाएंगी, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा विद द सेम स्पीड. ना वो न्यूक्लियस के अंदर गिरेगा और ना ही वो सेंटर से बाहर जाएगा. For this derivation, we follow Coulomb's law of electrostatic force or Coulomb's force of attraction. That is, electrostatic force is directly proportional to the product of two charges and the square root of the distance between these two charges. Let us consider Fe is the electrostatic force that is directly proportional to the Q1 Q2 by r square. Here will be the sign of proportionality. Q1 and Q2 are the two charges, and the product of two charges is directly proportional to the electrostatic force. When we remove the sign of proportionality, we put a constant, and r is the radius, r is the distance between these two charges. These two charges present in the circular path, that's why we took here radius r, that shows the distance between two charges. When we remove the sign of proportionality, we put a constant here, and here we put the constant as Fe is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by r square. This will be the product of two charges. Epsilon naught is the vacuum permittivity constant. It is the permittivity constant, vacuum permittivity constant, and this sign is known as the epsilon naught. Page number 30, second chapter, Federal Board, first year chemistry. You can follow the page number, that is 30, and the value of epsilon naught is 8.84 into 10 raised to power minus 12 Coulomb square per joule per meter. This is the constant value of epsilon naught, and you know the value of pi 3.14, that is the constant for circle, and 4 is the digit. Here Q1 and Q2 are the two charges, that is a proton and electron, so we will consider as positive and negative charge, both are equal. Q1 will be Ze plus and Q2 will be Ze minus. 1 by 4 pi epsilon naught constant Ze into E
r square. Now both charges जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है both are equal, दोनों की क्वांटिटी सेम है, सो वी विल कंसिडर एज ई स्क्वायर. जेड ई स्क्वायर हम कांस्टेंट ले लेंगे, जब दोनों हम इक्वल लेंगे तो ये हो जाएगा जेड ई स्क्वायर की. मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बिकॉज बोथ आर इक्वल इन द क्वांटिटी. अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो हम एक प्रोटॉन ही कंसिडर कर रहे हैं. नाउ एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. हम इसे कंबाइन फॉर्म में भी लिख सकते हैं. दैट विल बिकम एफ इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. नाउ we have to find out the radius. Now we will check the both forces, centripetal force and centrifugal force. Both forces are equal, that's why an electron is able to revolving around the nucleus in fixed orbit. Neither it fall in the nucleus nor it will be far away from the nucleus. इट विल रिमेन इन द ऑर्बिट. ऑर्बिट में रहने की वजह यही है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्सेस अप्लाई होती हैं, इस पे एक्ट करती हैं एंड बोथ आर इक्वल. सो वी विल टुक एज हेयर सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई. एफ सी हमने शो किया सेंट्रीपिटल फोर्स को, एफ ई शो किया हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv square by r and electrostatic force is ze square by 4 pi epsilon naught r square. Now we will put the values. These two forces are equal and opposite and balanced each other. So mv square by r is equals to ze square by 4 pi epsilon naught r square. Now after the cross multiplication, firstly we will solve this. R is division in here will be multiplication, and when r will be in denominator it will be cancelled with the square. So हम यहाँ डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे, r कैंसिल हो गया स्क्वायर से. रिमेनिंग वैल्यूज हम पुट करेंगे, दैट इज mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1. हमने इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट्स के अकॉर्डिंग जितनी भी डेरिवेशंस करनी है हमने इन्हीं क्वेश्चन को फॉलो करना है. दैट्स वाई हम नंबरिंग देते जा रहे हैं ताकि हमें इजी हो रिमेंबर करना. सो हमें रेडियस फाइंड आउट करना है. हम इस पूरे फैक्टर को डिवीजन में ले जाएंगे और आर को हम मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. आर इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एम वी स्क्वायर वहाँ डिवीजन में थे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में वहाँ मल्टीप्लिकेशन में थे, यहाँ डिवीजन में आ जाएंगे. वहाँ नोमिनेटर में थे, यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएंगे. दिस विल बी क्वेश्चन 2. नाउ we conclude that the radius of a moving electron is inversely proportional to the square of velocity. Radius is inversely proportional to the square of velocity. Now we consider angular momentum. According to Neil Bohr, angular momentum is mvr. Angular momentum is mvr is equals to nh by 2 pi. N is number of orbit, h is Planck's constant which has the constant value, and 2 pi, 2 is the constant factor, constant figure, and pi has the value 3.14. यहाँ लिख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम. जो नील बोहर का ही फॉर्मूला, नील बोहर ने ही डिफाइन किया था ये. अब हम इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन 3 का. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v. हम इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, रीअरेंज करेंगे और v वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. m r यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है,
इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये हो जाएंगे डिवीजन में। v इज इक्वल्स टू NH 2 पाई mr। ये वैल्यू हो गई वेलोसिटी की। नाउ हमें वेलोसिटी के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स स्क्वायर लेंगे। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर एंड r स्क्वायर। यहाँ 4 हो जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर एंड r स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर की, वेलोसिटी के स्क्वायर की वैल्यू। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, दिस विल बिकम इक्वेशन 4। 4 इक्वेशंस ड्राइव की हैं अभी तक हमने, ये फोर्थ इक्वेशन है। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू put the value in equation 2। सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, दैट इज z स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन टाइम v स्क्वायर। v स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करनी है। अब ये पाउंड में है v स्क्वायर, तो जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो इन्वर्स हो जाएगी, उसकी जगह हम इन्वर्स करके इस वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। हम कैसे करेंगे इसे, r z स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, v की जगह v की वैल्यू ऑपोजिट हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में जाके, ये हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। आपको समझाने के लिए मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि हम v की वैल्यू इन्वर्स में, v की जो वैल्यू पुट कर रहे हैं इस फार्मूला में, v स्क्वायर की वैल्यू वो हम इन्वर्स क्यों कर रहे हैं। डबल अपाउंड हो जाता, फिर डबल अपाउंड में वैल्यू जो बॉटम वैल्यू होती है वो अबव चले जाती है। तो अगर हम डायरेक्ट पुट करते हैं या फिर उससे अबव करें तब भी इसी तरह बनेगा, इसलिए हमने डायरेक्ट मेथड यहाँ यूज़ किया है और मल्टीप्लिकेशन में हमने डायरेक्ट इन्वर्स करके वैल्यूज़ लिख दी। आपको समझाने के लिए मैं ये तरीका भी आपको बता देती हूँ। z स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m v स्क्वायर। v स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू पुट की, z स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम आ गया, m सेम हो गया, v स्क्वायर की जगह वैल्यू हो गई n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट m स्क्वायर m स्क्वायर एंड r स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई। अब जो बॉटम वैल्यू है वो अपाउंड के ऊपर चले जाएगी और z के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे z स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m n स्क्वायर h स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू आ जाएगी इसकी 4 पाई m स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर एंड r स्क्वायर, जिसको हम सेपरेट भी लिख सकते हैं, z स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m एंड 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर एंड n स्क्वायर एंड h स्क्वायर। पाई पे भी स्क्वायर है, सो ये वही फैक्टर वही वैल्यू बन जाती है जो हमने यहाँ ड्राइव करके लिखी है इन्वर्स की वैल्यू करके। हमने ये भी की वैल्यू पुट कर ली। अब सेम फैक्टर्स हम कैंसिल करेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स सेम है, 4 कैंसिल हो जाएगा 4 से, पाई कैंसिल हो जाएगा पाई स्क्वायर से, 1 पाई रिमेन रहेगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं है सेम रहेगा, m कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, m रहेगा, स्क्वायर मीन्स 2 फैक्टर्स, r इज कैंसिल विद द स्क्वायर ऑफ r। रिमेनिंग जो हमारे पास वैल्यूज बचेंगी दैट विल बी 1, r कैंसिल हो गया तो हम 1 कंसिडर करेंगे यहाँ, इज इक्वल्स टू z स्क्वायर पाई m r डिवाइडेड बाय, ऊपर वाले फैक्टर पूरे हो गए हैं अब, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर।
अब हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आर का फार्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं, सो हम आर को सेपरेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, नॉमिनेटर में चले जाएंगे, इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर पाई एम आर। आर फाइंड आउट करना है तो जेड ई स्क्वायर पाई एम, डिवीजन में चले जाएंगे एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एंड एच स्क्वायर के। 1 से मल्टीप्लिकेशन करते आंसर सेम ही आता, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी जेड ई स्क्वायर पाई एम आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। हमने सिर्फ पोजीशन चेंज की है, एन एच स्क्वायर हमने पहले इस डायरेक्शन इस तरफ लिखा था, हमने उस तरफ लिख दिया है। हमने सिर्फ पोजीशन चेंज की है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या कुछ नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, आर फाइंड आउट कर रहे हैं, आर हम सिंपल सेपरेट कर लेंगे और बाकी फैक्टर को या मल्टीप्लिकेशन में वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो हम वहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख देंगे। आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड ई स्क्वायर पाई एम। जेड ई स्क्वायर पाई एम बॉटम आ जाएगा, जेड ई स्क्वायर पाई एम। ये फैक्टर हो गया हमारे पास आर की वैल्यू फाइंड आउट करने का, रेडियस फाइंड करने का। अब इसमें से हम वेरिएबल अलग कर लेंगे और कांस्टेंट फैक्टर अलग कर लेंगे। कांस्टेंट, इनकी वैल्यूज कांस्टेंट है जो आपको याद करनी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है, एन वेरिएबल है, एम पाई हमने इसी को रीड्राइव किया, रीअरेंज करके सिर्फ लिखा है। अब हम इसमें से कांस्टेंट फैक्टर अलग करेंगे जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होंगी, जो आपको याद करनी होंगी। वो कौन कौन सी हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन 5। अब हम वैल्यूज लिखेंगे इसकी फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में Z नंबर 1 ही होगा, एटॉमिक नंबर 1 होगा, तो Z 1 हो जाएगा। Z जब 1 होगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा पूरे फैक्टर से, तो उस फैक्टर का आंसर सेम रहेगा। सो अब हम कांस्टेंट फैक्टर अलग करते हैं। R इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय एम पाई ई स्क्वायर। Z 1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू यही रहेगी। इक्वेशन नंबर 6। नाउ हम इसकी कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, इजी करने के लिए हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं, या हम कांस्टेंट फैक्टर अलग करके उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एन वेरिएबल है, नंबर ऑफ ऑर्बिट पर डिपेंड करता है कि हम किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। एच इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट इज़ द कांस्टेंट फैक्टर, तो हम एन स्क्वायर को अलग लिखेंगे और प्लैंक्स कांस्टेंट एच को हम एप्सिलॉन नॉट के साथ लिखेंगे। तो हमारी ये वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बाय एम, mass of electron is constant, pi value is constant 3.14, charge of electron is constant। तो हमने constant values को अलग कर दिया एंड वेरिएबल हम सेपरेट कर देंगे, दैट इज एन स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिट, डिपेंड करता है हम किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, एन स्क्वायर। सो नाउ ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसकी वैल्यूज़ हम ड्राइव करेंगे और ड्राइव करने के बाद फिर हम बताएंगे इसकी वैल्यू हमारे पास एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बाय पाई एम ई स्क्वायर या एम ई स्क्वायर पाई, हम इनकी वैल्यू अलग कर लेंगे। सो अब जो एप्सिलॉन नॉट ए नॉट की वैल्यू होगी जो हमने कांस्टेंट फैक्टर के इक्वल लिया है, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बाई एम ई स्क्वायर पाई, ये पूरा फैक्टर हम ए नॉट के इक्वल ले लेंगे। जब ए नॉट के इक्वल हो जाएगा तो हमारा फार्मूला जो हमने ऊपर ड्राइव किया है, फार्मूला जो इक्वेशन 6 है, वो हो जाएगी आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर ए नॉट। ए नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है और एन इज़ द वेरिएबल, जो नंबर ऑफ शेल की बात करेंगे हम, जिस ऑर्बिट की बात करेंगे, एन की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे और उसकी वैल्यू के स्क्वायर वैल्यू पुट करके स्क्वायर करेंगे और ए नॉट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा किसी भी ऑर्बिट का।
इसे हम क्वेश्चन 6b का नाम दे देते हैं। जो क्वेश्चन 6 थी उसे हमने 6a कर दिया और ये क्वेश्चन 6b मीन्स वही क्वेश्चन है जिसमें हमने तमाम कॉन्स्टेंट्स को एक फैक्टर से डिनोट कर दिया और इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब जो n है नंबर ऑफ शेल और a0 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। अब a0 की कांस्टेंट वैल्यू क्या है? a0 is equals to 0.529 into 10 raised to power minus 10 मीटर। 10 raised to power minus 10 मीटर जो है इससे हम लेते हैं एंगस्ट्रम के इक्वल। एंगस्ट्रम लेंथ का यूनिट है जो इक्वल्स होता है 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर के। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.529 इंटू 0.529 एंगस्ट्रम। 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर इज इक्वल्स टू एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर। ये वैल्यू है जो हम इस यूनिट की को लेते हैं। तो हमारे पास a0 की वैल्यू में मिल गई 0.529 एंगस्ट्रम। हम a0 की जगह 0.529 वैल्यू पुट करेंगे एंड नंबर ऑफ शेल की वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट शेल, तो हम 1 का स्क्वायर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये फर्स्ट शेल की अगर हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। a0 जो जाएगा, a0 की वैल्यू हो जाएगी 0.529 एंगस्ट्रम। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 0.529 एंगस्ट्रम। तो आंसर इसका हो जाएगा, रेडियस जो होगा फर्स्ट ऑर्बिट का वो हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रम। इस तरह हम फाइंड आउट कर लेंगे फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। इस तरह हम n की जगह जिस भी ऑर्बिट का हमें फाइंड करना है, हम n की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर करके हम फाइंड आउट कर लेंगे उस ऑर्बिट का रेडियस।